أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. Jazakallah. You all are requested to please stand and respect our national anthem. National anthem, please. Now I request Secretary, Pakistan Society of Development Economists, Dr. Iftikhar Ahmed, to take the rostrum, please. Thank you, Dr. Osman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you all for joining in today. Honorable guests, respected President PhD, Dr. Nadimul Haq, respected host, Vice Chancellor, University of Malakand, Dr. Rashid Ahmed, worthy Vice Chancellors, faculty, officers, ladies and gentlemen, and specifically the students. It is an honor for me to welcome you all to the second regional conference of Pakistan Society of Development Economists. PSD is the most important and prestigious professional association of economists dating back to 1982. We have been normally conducting annual general meetings and conferences for the last 37 years. But looking at the range of issues, what we have
felt is that we need local solutions for local issues. We need efficiency. We need to ponder upon uh, issues which are of the local nature, and we need regional consensus so that we can build networks and academia and government linkages. In quest of such solutions, PhD, in collaboration with the University of Malakand, has organized this regional conference titled as Unleashing the Economic Potential of Khyber Pakhtunkhwa, which we believe is so much important to gauge our potential basically and to plan accordingly. This conference provides a forum to debate and develop indigenous ideas so that we can address the issues causing our worrisome state of affairs. As you can notice, we have tried to cover diverse issues and we are talking about different topics which we believe, we are confident that the speakers will generate good discussion about. We would also like to benefit from your presence as students, because we have open sessions tomorrow, and after each session we will have question answer sessions. So whatever comes in your mind, we are happy to learn from you as well, being the new blood. So it's my pleasure to report that we have a vibrant host like University of Malakand. With the help of University of Malakand, we have the presence of VCs, faculty and students from 20 universities. We have 10 sessions on different topics, and we have speakers, 40 national experts as speakers. So we believe that such efforts will build networks capable of harnessing long-lasting relationships and much-needed academia policymaker linkages, so as to put our country on the path of development. So here I would stop, looking forward to learn from you all and wish you a warm, memorable and welcoming learning experience. Thank you very much, Dr. Iftikhar. I would like to name a few organizations who are with us today. A representative from Malakand University's consortium, including Shahid Benazir Bhutto University Sharingal, University of Swat, University of Chatral, University of Dir, University of Bonaire, University of Shangla, University of Agriculture Swat, University of Engineering and Technology Swat. Faculty and students from these universities are here with us. Thank you very much for your presence. We are having students from our affiliated colleges with the university. We are also thankful to them. I would like to mention here representatives from the Directorate of Science and Technology, representatives from UNHCR, representatives from Khyber Pakhtunkhwa Board of Investment and Trade, their business facilitation wing director and director finance are with us, representatives from KP Culture and Tourism Authority. Thank you very much for your presence. Now I would like to invite Professor Dr. Rashid Ahmed, Vice Chancellor, University of Malakand, for the welcome address, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Distinguished guests, esteemed scholars, media persons, and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. A warm welcome to the 37th Annual Conference of the Pakistan Society of Development Economists. It is an honor to stand before the galaxy of scholars gathered to discuss the theme of unleashing the economic potentials of Khyber Pakhtunkhwa. First and foremost, let me express my sincere gratitude to Professor Dr. Nadeemul Haq, Vice Chancellor of the Pakistan Institute of Development Economics, for gracing us with his presence. Sir, arranging such conferences in different parts of the country is the testimony of your dedication for common well-being, excellence in academics, and the sharing of knowledge. These conferences serve as a vibrant platform for bringing together distinguished scholars, policy makers, economists, and experts from diverse fields to discuss and exchange innovative ideas. Our collective focus is to harness
the vast economic potential of Khyber Pakhtunkhwa and pave the way for sustainable development and prosperity. We recognize the significance of collaboration between academia, government, and industry for economic growth. It is through the synergy of these three pillars that we can create a conducive environment for innovation, entrepreneurship, and inclusive development. We are fortunate to have representatives from each of these domains present here today. For the next 2 days, we will delve into a wide range of topics, including policy frameworks, human capital development, technological advancement, and sustainable practices. The insights here and the knowledge exchange during this conference will play a vital role in shaping the economic landscape of our region. I would like to extend my heartfelt appreciation to both the teams from the University of Malakand and the Pakistan Institute of Development Economics for their untiring support and collaboration in organizing the event. Their dedication and commitment to academic excellence and research have been instrumental in making this conference a reality. I would like to appreciate the efforts of Dr. Ikramullah, Department of Economics, for bringing this conference to the University of Malakand and the efforts of both the teams for organizing the event. I would like to express my sincere appreciation to the esteemed representatives of the Malakand University's consortium. Your presence here today reflects the spirit of collaboration and mutual support that drives us forward. To all the esteemed participants, your presence here is a testament of your passion and commitment toward advancing the field of development economics. I encourage you to actively engage in the discussion, share your expertise, and foster meaningful collaboration. Let us collectively explore innovative strategies and solutions that will unleash the true potentials of Khyber Pakhtunkhwa. Once again, I extend my warm welcome to each and every one of you. Let us embark on this intellectual journey together with the aim of shaping a brighter future for our beloved region and nation. Let me end with the couplet of Allama Iqbal, जहाँ ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद के संग खुश से होते नहीं जहाँ पैदा. वस्सलाम. Thank you, sir. Now, to welcome you all on the behalf of PIDE, I would like to invite the very vocal and vibrant Professor Dr. Nadeem ul Haq, Vice Chancellor, Pakistan Institute of Development Economics. Assalamualaikum ji, Assalamualaikum Malakand. It's very nice to be here. और अभी वीसी साहब का बहुत शुक्रिया, कमेटी का बहुत शुक्रिया. अभी माशाल्लाह got a great agenda for you. मुझे भी बाहर पूछा गया कि कॉन्फ्रेंस क्यों करा रहे हैं, तो मैंने यही कहा कॉन्फ्रेंस का मतलब एक ही होता है, तबादला ख्याल. And what we want to do is discuss with you through the PSD platform and the University of Malakand platform कि हमारे माशी हालात हैं क्या, and what are the economic issues that we should all talk about in research. Ultimate हमारा तो जो goal है is research. Pakistan Society of Development Economics 40 साल से exist कर रही है, but unfortunately it's a association of social scientists in Pakistan, probably the only association of social scientists in Pakistan, because social science बहुत disorganized sector है, public policy और भी disorganized sector है. साइंस ज़रा बेहतर है. मुझे कल वीसी साहब ने बताया कि apparently साइंस में केमिस्ट्री में तो इनकी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, and they have a lot of meetings. हमारे यहाँ तो होती नहीं है. तो सोशल साइंस की तरक्की के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सोशल साइंटिस्ट शुड गेट टुगेदर, टॉक अबाउट रिसर्च,
लेट मी पुट इट दिस वे, दुनिया की हिस्ट्री में ये हुआ था। बरतानिया ने जो हमें कॉन्कर किया, किस वजह से किया था भूल जाते हैं। ब्रिज वो बना के चले गए, मुझे कल दिखाई गई ब्रिज उन्होंने बनाई है, हमने 2 ब्रिजेस बनाई, गिर गई बरतानिया की ब्रिज खड़ी है। क्यों खड़ी है बरतानिया की ब्रिज? हम क्यों नहीं तरक्की करते? यार ये आवाज ज्यादा नहीं गूंज रही? अच्छा, एनीवे, क्यों नहीं हम तरक्की करते? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वी रिफ्यूज टू थिंक। एक छोटी सी सीक्रेट आपको बता दूं जो शायद आपको पता ही होगी, बट रिपीट कर देता हूं। हम पॉलिसी खुद बनाते ही नहीं। मुझे बाहर मीडिया में पूछा गया कि जी आपकी सिफारिशात सुनी जाएंगी, तो मैंने कहा एक तो मैं सिफारिशी नहीं हूं, दूसरी मैं सिफारिश में बिलीव नहीं करता, तीसरी मैंने हुकूमत को कोई सिफारिश नहीं करनी। सुनते हैं सुने, नहीं सुनते ना सुने, काम कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते तो आप इलेक्टर्स हैं, भैया आप ना इलेक्ट करें, ठीक है। अगर आप इलेक्ट कर देते हैं उनको और वो काम नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। पर हमारी पॉलिसी ये बनाते नहीं हैं, प्लीज याद रखें। हमारी पॉलिसी बनाते हैं डोनर्स, लेंडर्स, वर्ल्ड बैंक, डिफेड, एडीबी वगैरह सब ये पॉलिसी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन्होंने पैसे देने होते हैं, वो पैसे देते हैं, डेट बढ़ जाता है। और उस पॉलिसी में मालाकंड वगैरह का कोई हल नहीं, बिकॉज वो पॉलिसी इस्लामाबाद बैठ के बनती है, या फिर वो यहाँ आके पेशावर में केपी को लोन दे देंगे। अब मसला ये है कि जो मैं रोता रहता हूँ, हमारी 300 यूनिवर्सिटीज बन गई हैं, उनका पॉलिसी में क्या रोल है? बाकी दुनिया में यूनिवर्सिटीज में पॉलिसी बनती है, यूनिवर्सिटीज में मॉनिटरिंग होती है, यूनिवर्सिटीज में थॉट आता है। तो अगर हमारी यूनिवर्सिटीज ये काम नहीं कर रही, then by definition others are doing it। बाकी हमारी मिनिस्ट्रियों में तो जान नहीं पॉलिसी बना सके, ना हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री में प्लानिंग का, मैं डिप्टी चेयरमैन रह चुका हूँ, मिनिस्टर रह चुका हूँ, प्लानिंग में कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो तो बना नहीं सकते, तो फिर कौन बनाएगा? बाहर वाले लोग ही बनाएंगे ना। तो चाहे आप सोचे आज़ादी मिल गई है आपको, पर वो गोरा जो ब्रिज बना गया तो बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, उसने अभी भी आपके ऊपर पंजा रखा हुआ है। तो अगर हम ऐसी कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, इसलिए कराते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट्स आपस में बात करें और सोचे क्या रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हम पाइड में आजकल क्या कर रहे हैं और पीएचडी में क्या कर रहे हैं? हम सोचते हैं कि हमें अपना रिसर्च एजेंडा बनाना चाहिए। हमारा रिसर्च एजेंडा क्या है? हम काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल चार्टर ऑफ इकोनॉमी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है? हम कहते हैं इस मुल्क में क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या इसेंशियल रिफॉर्म है जिससे तरक्की हो। हमारी हुकूमत तो ये सोचती है कि पैसा आ जाए तरक्की हो जाएगी। अगर किसी ने फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर सुनी तो वो तो ये कह रहे थे सऊदी अरेबिया हमें 2 बिलियन दे देगा, चीन 1 बिलियन दे देगा। मुझे तो भीख मांगते हुए शर्म आती है, मैं तो भीख नहीं मांगना चाहता, आप लोग मांगना चाहते हैं आपकी मर्जी। अगर सऊदी अरेबिया वो दे देंगे तो पैसे फिर क्या हो जाएगा? अगले साल फिर हम मांग रहे होंगे। 75 साल से ये ढोंग चल रहा है। हमने कहा भाई इसको ख़त्म करने के लिए सोचें क्या करना है। हमारा एजेंडा ये, हम भीख मांगना कैसे बंद करें। हमने इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क ग्रोथ बनाया हुआ है। हम कहते हैं भाई सबसे पहली चीज़ कि अपनी इंस्टीट्यूशन को तकड़ा करें। आप सब ने लोगों ने पढ़ी होगी वाई नेशंस फेल। कितने लोगों ने यह वाई नेशंस फेल पढ़ी है? प्लीज़ हाथ खड़ा करें। कुछ स्टूडेंट्स में प्लीज़ ज़रा पढ़ें, किताब बहुत अच्छी किताब है। वो यही कहती है कि ये आप लोग फेल कर रहे हैं, वाई? आपके पास काम करने के तरीक़ेकार नहीं है। काम करने के तरीक़ेकार क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारा वक्त झगड़े करती है, इक़्तिदार की जंग है। और इक़्तिदार की जंग जिस मुल्क में होगी वहां तरक्की नहीं होती। जब बरतानिया या तुर्की इक़्तिदार की जंग में पड़ गया था, मुस्लिम उम्मा इक़्तिदार की जंग में पड़ गई थी, हमारी तरक्की बैठ गई। तरक्की होती है थ्रू नॉलेज क्रिएशन, नॉट थ्रू इक़्तिदार की जंग। तो हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे तहकीक की। फिर हमने कहा कि यार ये पॉलिसी कैसे बनती है। हमने देखा लेंडर पॉलिसी बनाता है, हमने लेंडर पे तहकीक की। फिर हमने देखा कि ये पॉलिसी सिविल सर्विस बनाती नहीं, हमने सिविल सर्विस पे तहकीक की। फिर हमने देखा कौम की दौलत कहाँ है, हमने कौम की दौलत पे तहकीक की। कौम की दौलत दो किस्म की दौलतें हैं। एक तो दिमाग जो हम इस्तेमाल नहीं करते, चले वो ज़ाया हो गया। दूसरी दौलत क्या है?
लोग सोचते हैं मिनरल्स, बिल्कुल मिनरल दौलत नहीं है। मिनरल तो गोरे की इमानत है, मिनरल तो आपका है ही नहीं, उसने निकालना है, उसने ले जाना है, उसकी इमानत समझें। क्योंकि मिनरल निकालने में बड़ा दिमाग चाहिए होता है, जो दिमाग ने इस्तेमाल करे वो मिनरल निकाल सकता। तो मिनरल तो गोरा ले जाएगा। अब रह क्या गया? चले आपके पास जमीन है, जो आपकी जमीन अरबों करोड़ों में बिक रही है, बट उस जमीन पे तो हुकूमत काबिज है, तो हमने उसका हिसाब लगाया। हुकूमत जो काबिज है, डेड कैपिटल, कोई 60% का कैपिटल डेड पड़ा है आपके मुल्क में। क्यों पड़ा है? क्योंकि उस पर सरकारी घर है। फिर उसके बाद हमने हिसाब लगाया कि क्या मार्केट क्यों नहीं चलती? आपके मुल्क में एक मार्केट भी नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, क्यों नहीं चलती? वो हिसाब लगाया क्योंकि आपकी ओवर रेगुलेशन है। ओवर रेगुलेशन क्या है कि हर ब्यूरोक्रेट कहता है मेरे से पूछ के चलो, मेरे से पूछ के तुम बाथरूम जाओगे, मेरे से पूछ के खाना खाओगे, मेरे से पूछ के, तो सारा दिन बिजनेस में तो परमिशन लेते रहते हैं। फिर पता चला कि एनर्जी सेक्टर बड़ा ख़राब है। फिर हमने एनर्जी सेक्टर पे तहकीक की, एनर्जी सेक्टर पे किताब लिखी, एनर्जी सेक्टर पे आप बाहर सारी चीज़ें पढ़ी हैं। एनर्जी सेक्टर पे ये है कि यार हमें अगेन निज़ाम ही नहीं बनाना आता, ना हमें पता चलता उसको प्राइस कैसे करें, ना हमें पता चलता बिजली कैसे बनाए, ना हमें पता चलता बिजली कैसे इस्तेमाल करें। तो ये होता है हम कॉन्स्टेंट शॉर्टेजेस में रहते हैं। तो हमने उससे बात की। फिर हमने लोकल गवर्नमेंट में बात की। अब लोकल गवर्नमेंट क्या है? लोकल गवर्नमेंट भी नहीं हमें पता क्या है। हम सोचते हैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है, बिल्कुल नहीं है। लोकल गवर्नमेंट एक काम करने का तरीका, जस्ट लाइक पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं है, काम करने का तरीका है, उस पर बात की। फिर हमने सोचा कि हर एरिया की क्या है कंपैरेटिव एडवांटेज, उस पर बात की। तो बाप से बात करेंगे आज मलकंड और इस रीजन के क्या कंपैरेटिव एडवांटेज है। गिलगित बल्तिस्तान हम गए, वहां हमने बात की, कोई कंपैरेटिव एडवांटेज नजर नहीं आ रही। गिलगित बल्तिस्तान की बिजली 10 घंटे आती नहीं है, पानी साथ चल रहा है, बिजली नहीं आती। क्यों? बिजली निकालनी नहीं आती पानी से। पानी में तो बिजली पड़ी हुई है, यहां भी पड़ी हुई है बिजली, पर निकालनी नहीं आती। उसके बाद वो कहते हैं टूरिज्म कैसे होगी ये भी नहीं पता, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, टूरिस्ट कल्चर ही नहीं। तो वी हैव टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू फिगर आउट। फॉर एग्जांपल कल रात बात हो रही थी, यहाँ ट्रेडिंग कम्युनिटी है, व्हाट आर दे ट्रेडिंग? तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी वांट टू टॉक टू यू अबाउट। और उम्मीद ये है कि मालाकंड पे हम आपसे सीख के जाएंगे, क्योंकि हम जो यहाँ आते हैं सीखने के लिए आते हैं आपसे, कि हम जाके मालाकंड पे भी कोई तहकीक कर सके। तो आपसे सीख के जाएंगे, आपसे डिबेट करेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे, कुछ सीखेंगे और कुछ आपसे तबादला ख्याल करेंगे, और फिर इंशाल्लाह कुछ आपस में एक किस्म का हम अपना कोऑपरेशन भी बढ़ाएंगे। तो बहुत शुक्रिया सर, वाइस चांसलर साहब, रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह देखते हैं हाउ वी डू द नेक्स्ट 2 days। थैंक यू। Thank you, sir. The reason I said vocal about him, you just saw it, and if you want to know the reason behind him being vocal, just visit his Twitter handle. My name is Dr. Tariq Khan. I teach biotechnology at University of Malakand. I'll be guiding you through our sessions. Our first session is on the current crisis in Charter of Economy. The moderator for this session is Dr. Nadeemul Haq, VC PIDE, and along with him, the panelists are Dr. Atar Maqsood Ahmed from NUST, Dr. Shaf Najib from PIDE, and Dr. Iftikhar Ahmed from PhD. I request Dr. Nadeemul Haq and the panelists to have his seats. Assalamu alaikum ji. Welcome to the first session. सेशन है जी पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। इसमें एक छोटी सी बात कह दूं कि पाकिस्तान तो हमेशा इकोनॉमिक क्राइसिस में रहा है। 75 साल मेरा ख्याल कोई साल नहीं था जो इकोनॉमिक क्राइसिस के बगैर था। अतर साहब, इस क्राइसिस में क्या डिफरेंस है पिछले क्राइसिस से? कोई डिफरेंस है? Bismillahirrahmanirrahim. Let me first of all thank you the organizers, मालाकंड के यूनिवर्सिटी के लोगों को और वाइस चांसलर साहब की खिदमत में बड़ी मदबाना शुक्रिया, और स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे उन सब की बड़ी मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लाएँ। Now as far as the crisis is concerned, it appears कि जी के 75 साल में ये सब कुछ ही जो कुछ हम आजकल देख रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन उसकी थोड़ी सी डायमेंशन इस दफ़ा फ़र्क है। फ़र्क इस तरह से है कि जी के पहले अगर आप पूरा डाटा उठा के देखें तो 1990 तक प्रॉबेबली ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री जो थी हमारी
वो अपवर्ड थी, यानी हम आगे को चल रहे थे। अगर अपना कंपैरिजन करें बाकी मुल्कों से तो वी वर डूइंग वेरी वेल, उनके मुकाबले में ही ग्रोथ हो रही थी इन पर कैपिटा टर्म्स एज वेल एज इन ओवरऑल टर्म्स। लेकिन जो जहाँ तक बाकी जो स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं, वी हैव बीन सफरिंग दिस, बजट डेफिसिट हो जाए या करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाए, ये तो हमेशा से है, पेरेनियल प्रॉब्लम है हमारा। 1952 में या 53 में पहली दफ़ा हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में गया था जब कोरियन वार हुई थी। उसके बाद फिर एक लंबा अरसा जो है वो डेफिसिट में चलते गए और डेफिसिट वाली सिचुएशन गंभीर होती चली गई। और बजट डेफिसिट को देखें तो हम 4-5% का बजट डेफिसिट तो हमेशा से हमारी रूटीन रही है। 20% हमारा जीडीपी का जो है वो हम खर्चा करते हैं और 14-15% हमारा जो है वो रेवेन्यू जनरेशन होती है जीडीपी के परसेंटेज में। तो लामोहला 5% का डेफिसिट तो हमेशा से रहा है। तो उसी को फाइनेंस करने के लिए पैसे मांगते हैं, डोमेस्टिकली भी बजट की सपोर्ट के लिए और इंटरनेशनली हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट के लिए मांगते रहते हैं। तो ये तो सारी वो चीज़ें हैं कि जो 75 साल से चल रही हैं और ज़रूर चल रही हैं। जो फ़र्क इस दफ़ा हो गया है वो ये हो गया है कि जी के द एलिमेंट ऑफ अनसर्टनिटी जो है ये बहुत सीरियस हो गई है इस दफ़ा। यानी हर बच्चा जो बड़ा हो रहा है उसको ये अनसर्टनिटी है कि जी कि मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो कि हमारे ज़माने में बावजूद ये सारी प्रॉब्लम्स होने के ये वाला प्रॉब्लम नहीं था कि जी कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुल्क तरक्की करेगा या नहीं करेगा, मुल्क किधर को जा रहा है, पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा। ये जो एडवर्स एक्सपेक्टेशन जो है इट इज़ ए वेरी सीरियस इशू। उसके साथ साथ दूसरा जो बड़ा इशू हो गया है कि जो ग्लोबल सेटअप में हम जिस तरीके से इस वक्त बने हुए हैं, तो हमारी जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें हम कोई पोजीशन ही नहीं ले सके अभी तक कि वेयर वी वांट टू बी इन द कमिटी ऑफ नेशंस। तो वो जब उसमें कोई पोजीशन नहीं लेते तो हमें ये एक रोलिंग स्टोन सा बना हुआ है, जिस तरफ जिसका दिल चाहता है वो हमें धकेल देता है। कभी हम एक कैंप में जाने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरे कैंप में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है which has come into our own system also, तो political instability along with economic instability ये ज़रा ज़्यादा मुश्किल बात हो गई है। तो ये पहले इस तरीके से इतना नहीं होता था। एक ही दफ़ा ज़िंदगी में मुझे याद है कि जी के पहले इंस्टेबिलिटी इस तरह से नज़र आई थी कि दैट वाज इन 98-99। तो 98-99 में वो भी एक रीज़न था कि जब हमने न्यूक्लियर होने का ऑप्शन ले लिया तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए हमारा जो है वो सिचुएशन थोड़ी ख़राब हुई थी, बट देन ऑब्वियसली वी वर एबल टू रिकवर। लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी रिजिलियंट है, वी हैव द कैपेसिटी टू कम बैक एंड, लेकिन वो जो रिजिलियंस है वो इस दफ़ा वो उसमें भी थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा है कि इट इज़ नाउ क्वाइट ए टाइम कि when the chips are down and we think कि जी के हमारी रिकवरी के इश्यूज बने हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल में इशू बन गया है इस वक्त। बहुत अच्छे जी, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ज़रा हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं पर अब ज़रा नीचे को गिर रहे हैं। तो ये जो सारा सिचुएशन है इसमें बहुत दुनिया में देखा गया है। अर्जेंटीना के साथ हुआ, मेक्सिको के साथ हुआ, ईस्ट एशिया में भी देखा, बहुत जगह हुआ है। तो हमारा भी एक ना एक दिन क्राइसिस बढ़ता जो जा रहा है, क्या पता क्या होएगा। तो इसके लिए हमने जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी में काम किया है, क्या जी ये शाफ साहब क्या है चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ज़रा डिस्क्राइब करें ना केयरफुली बट क्विकली। सो बेसिकली जब लास्ट ईयर ये अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई और पॉलिटिकल सर्कल्स में बात हुई कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, लेकिन वो बात एक नाम तक ही रही कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, किस तरह का, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उस पर कोई ख़ास बात नहीं हो सकी। तो पाइड में हमने बीइंग द लीडिंग थिंक टैंक ऑफ द नेशन हमने इस पे एक काम किया कि अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमारी जो सियासी कुव्वतें हैं उन्होंने करना है तो वो बेसिकली होगा क्या।
और उसको हम एक चार्टर से ज़्यादा जो हम कहते हैं कि ये एक रिफॉर्म एजेंडा है कि आगे अगर हमने बेहतरी की तरफ जाना है, हमने ये देखना है कि हमारी जो मईशत है वो तरक्की की राह पर गामजन हो, तो हमें अपनी गवर्नेंस सिस्टम, अपनी पॉलिसी में क्या क्या तब्दीलियां लानी हैं और किस तरह से इस टाइम पे जो हमारी पॉलिसी है वो सियासत की नज़र हो चुकी है, उससे किस तरह से उसको डीलिंग करना है। और यही चीज़ सबसे पहले जो हमने उसमें बात की कि अगर आप चाहते हैं कि कोई रिफॉर्म एजेंडा उस पर अमल हो, तो सबसे पहला स्टेप उसमें यह है कि आप अपनी सियासत को पॉलिसी से डीलिंग करें। इसमें एक बड़ी अच्छी मिसाल मैं दूंगा इंडिया की। इंडिया में भी इसी तरह क्राइसिस आए, वो भी IMF के पास गए, लेकिन 1990s में उन्होंने जो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया, वो चाहे कांग्रेस की हुकूमत आई या बीजेपी की, उन्होंने अपना जो मैक्रो पॉलिसी फोकस था वो सेम रखा। और आज 3 दहाइयों बाद जिस मकाम पे मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में इंडिया खड़ा है, दुनिया की तमाम कुव्वतें, मौशी कुव्वतें उसके साथ मिलकर काम करना चाह रही हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ हमारा कोई पॉलिसी फोकस नहीं रहा। हमारा जैसे कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, जैसे डॉक्टर नदीम ने भी स्पीच में कहा कि हमारा सारा फोकस आता है या फैसले आते हैं वो बाहर की डोनर एजेंसीज के जरिए आते हैं, और ये डोनर फंडेड, डोनर सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स ही होते हैं जिनको हम यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और उसकी एक बुनियादी वजह है हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। और हमने जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जो रिफॉर्म एजेंडा पेश किया, उसमें सबसे जो पहली हमने बात की वो हमने बात की गवर्नेंस फॉर द 21st सेंचुरी की। जो हमारा निज़ाम इस वक्त चल रहा है ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल, ये वो निज़ाम है जो हमने जब मुल्क आज़ाद हुआ बरतानिया से, तो हमने उनसे ये निज़ाम इंपोर्ट किया। आज 21वीं सदी में उसके 70 साल बाद बरतानिया उस निज़ाम को छोड़ चुका है, लेकिन हम उसके साथ आज तक जुड़ के खड़े हैं। तो जब तक हम सबसे पहले अपना वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो मईशत है वो किसी भी मईशत का पहिया सही तरह नहीं चल सकेगा। उसमें एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है और वो है सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि पार्लियामेंट को मिनिस्ट्री की तरफ जाने का जो है राह ना देखी जाए, बल्कि पार्लियामेंट का एक अपना पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी मॉनिटरिंग में जो रोल है वो देखा जाए। इसके साथ साथ एक बहुत अहम काम जो पाइड ने किया है, जो कि स्लज ऑडिट है, यानी कि हमारा जो जितने भी इकोनॉमी के प्रोसेसेस हैं उसमें जो रुकावटें हैं ओवर रेगुलेशंस की वजह से, उनको किस तरह से कम किया जाए। और ये गवर्नेंस रिफॉर्म्स जब तक नहीं आएंगे तब तक हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा सकेंगे। और गवर्नेंस रिफॉर्म्स के बाद ही हमारी इकोनॉमिक गवर्नेंस की बात आएगी कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमिक एजेंसीज को इस्तेमाल करेंगे, उनको किस तरह से गवर्न करेंगे ताकि वो एक फैसिलिटेटिव रोल अदा करें। और इसके साथ साथ कि हमारा जो फोकस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे होना चाहिए। हमारी पॉलिसीज़ का हमारी 5, 10, 15 यानी मीडियम से लॉन्ग टर्म पॉलिसी गोल्स होने चाहिए जो हम अचीव करें, टारगेट्स, लॉन्ग टर्म टारगेट्स विद शॉर्ट टर्म माइलस्टोन्स होना चाहिए फोकस हमारा, जिनको हम अचीव करें ताकि गाहे बगाहे हमारी इकॉनमी जो है वो एक तरक्की की राह पर गामजन हो सके। इफ्तिखार साहब, ये बताइए कि ये जो हमने पिछली 2 कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं PST की, एक पेशावर एक कोयटा में, उसकी तरह ब्रीफ समरी दे दें लोगों को, उससे क्या निकला, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम देम? थैंक यू सर। श्योर सर। सर जैसे कि मैंने पहले कहा कि PhD का काम ही यही है कि जी नेटवर्क बिल्डिंग और मतलब लोगों को इकट्ठा करना, एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करना और कुछ लोगों को मजबूर करना थिंकिंग पे। So that's what's the idea, that was what the idea behind the PhD conferences. So जब हमने ये सोचा कि why to hold all the conferences in Islamabad, सिर्फ policy making after 18th amendment is not the domain of center only, so हम provincial headquarters में जाना start हुए. So the first destination was Peshawar, which was regarding opportunities. So उसमें हमने बेसिकली आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ की बात की कि जी हमारे जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो लिटरेट इलिटरेट जो भी मासेस हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वो सोचते क्या हैं, उनकी इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है, जिन लोगों ने सक्सीड किया उनकी क्या अप्रोच थी। सो दैट वाज द बेसिक थीम ऑफ द 3 days कॉन्फ्रेंस, और इट वाज बेसिकली फोकसिंग ऑन अपॉर्चुनिटी।
how to define opportunity, how to grab opportunity, how to take benefit of opportunity if you have missed something, so how to come back. So that was the whole subject matter. Last year चूँकि हमारा economic crisis बहुत ज़्यादा बढ़ गया, and as the current session also look upon the charter of economy, तो हमने यही सोचा कि जी charter of economy हमारा क्या होगा if Pakistan has to restart or to start afresh, तो हमने क्या करना है, कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हम करें तो हम आगे जा सकते हैं. सो जो लास्ट ईयर क्वेटा वाली कॉन्फ्रेंस थी 36th AGM, so that was charter of economy, investment, productivity and employability. इन्वेस्टमेंट आप तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप प्रोडक्टिव एनफ हों. आप प्रोडक्टिव तभी हो सकते हैं जब आप थिंकिंग एनफ हों. जब आप प्रोडक्टिव होंगे तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी. आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी तो आपके, इसका मतलब है कि स्किल्स बढ़ी हुई हैं. स्किल्स बढ़ी हैं तो अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को. सो ये वो ट्रिनिटी थी या वो ट्राइका था जो हम समझते थे दैट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट. अगर मैं उसमें 1-2 बातें कह सकूं तो हमारा एक सेशन था जिसमें आई एम बैड एट नेम्स बट देयर वाज एन एक्सपर्ट, और उन्होंने कहा कि एंड हिज बिजनेसेस स्टैंड आउट, वो उन्हें बड़े सक्सेसफुल रहे आईटी बिजनेस में. तो उन्होंने कहा कि जी हमने ओनरशिप बिल्ड करने के लिए क्या किया कि हमने तमाम जो एम्प्लॉयज़ थे उनको एम्प्लॉयज़ नहीं कहा, उनको स्टेक होल्डर्स कहा, उनको पार्टनर्स कहा. तो जब उनकी हर प्रॉफिट में उनका हिस्सा है तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट किया. इसी तरह हमारे साथ माइकल स्पेंस थे, नोबेल लॉरिएट थे, डेविड अटोर थे, एंड देयर वर अदर गैलेक्सी. सो इट वाज ऑल अबाउट बिल्डिंग नेटवर्क्स, और उसी से अब आइडिया निकला है दीज रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के जी चले हमने प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में तो कर लिया, व्हाट अबाउट द डिवीजन लेवल कॉन्फ्रेंसेस, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग नाउ. अदर साहब, कमिंग बैक टू यू, बताइए, यू आर एन एक्सपर्ट इन टैक्सेस. हमारी टैक्स पॉलिसी पे आपने बहुत काम किया है, सबने हमने काफ़ी काम किया है. हमारी टैक्स पॉलिसी जो हम इतनी एक दूसरे को, FBR सारा दिन लगा रहता है कि हम लोग टैक्स चोर हैं, हुकूमत भी सारा दिन लगी रहती है हम लोग टैक्स चोर हैं. क्या ये बात सही है? क्या वाकई हम टैक्स चोर हैं या हमारी पॉलिसी में ख़राबी है? ये जो जब हमने ये बात की कि जी के व्हाट आर द इश्यूज विद रिगार्ड टू आवर इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में बेशुमार एरियाज़ में ख़राबियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो हमारी गवर्नेंस के इश्यूज़ हों, चाहे वो हमारी पॉलिसी के इश्यूज़ हों, और चाहे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज़ हों. एक तो स्टैंडर्ड तरकीब है कि जी के कुछ ना कुछ हम तरीके से शॉर्ट टर्म की मैयर लगाएं और बस उसको ठीक कर लें, और एक वो पॉलिसीज़ होती हैं कि जिनकी लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस होती है, जिसको रिफॉर्म कहते हैं. स्ट्रक्चरली एडजस्ट करनी पड़ती हैं जहां आपको पता लगे कि चीज़ ख़राब है और उसको ठीक करना है. 1990s में, लेट 80s और अर्ली 90s में ये रियलाइजेशन हो गई थी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, इकॉनमी जो है वो इसमें ख़राबी पैदा हो रही है, एंड इफ़ इट इज़ नॉट करेक्टेड तो ये मसाइल बहुत बढ़ते चले जाएंगे. तो एक बड़ा मैसिव रिफॉर्म प्रोग्राम आया था, आपको भी याद होगा कि 1990s में जो भी एरिया आप देखिए उसमें हमने रिफॉर्म्स की थी, चाहे वो टैक्सेशन का एरिया हो, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का एरिया हो, पुलिस की रिफॉर्म हो, जुडिशरी की रिफॉर्म हो, सिविल सर्विस की रिफॉर्म हो, टैरिफ की रिफॉर्म्स हो, ये सारी रिफॉर्म्स की गई. और पूरा 10 साल तक हमने एक प्रोसेस, रोड मैप बना हुआ था, उस प्रोसेस के साथ चीज़ों को दुरुस्त करते चले गए, और उसका नतीजा ये है कि जी कि हमें बाय द एंड ऑफ 1990s ईरा और अर्ली 2000 में हमें उसके बेनिफिट्स आने शुरू हो गए. अब बेनिफिट्स वो किस तरह से आए थे कि अगर आपको याद हो सब लोगों को कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो $420 थी. 420 वो नंबर ही ऐसा है कि जो याद रहता है आपको. बाई 2008 हमारी वो पर कैपिटा इनकम डबल हो गई थी, 840 पे पहुंच गई थी, और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था
कि जी ये सड़कों पे गाड़ियाँ इतनी आ गई हैं, इनको पार्क कहाँ करें, हर तरफ कंजेशन हो गई, ये हो गया वो हो गया। यानी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतनी तेज़ी से वो चेंज होता है जब आपकी पर कैपिटा इनकम डबल होती है, और वो सारा हुआ था रिफॉर्म प्रोसेस की वजह से। उसमें एक टैक्सेशन रिफॉर्म भी थी। टैक्सेशन रिफॉर्म के दो बेसिक प्रिंसिपल थे कि एक तो टैक्स स्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, और दूसरा उसकी जो पॉलिसी के रिलेटेड इश्यूज हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के जो इश्यूज हैं उनको ठीक किया जाए। अब पॉलिसी में ये क्या था कि आपको भी याद होगा कि जी के शुरू में जहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी वहाँ टैक्स का बंदा मौजूद होता था। अगर एक फैक्ट्री है तो उसके गेट के ऊपर एक वो एक्साइज ड्यूटी का बंदा बैठा होता था। अगर आपकी इंपोर्ट्स हैं तो वहाँ पे कस्टम वाले बैठे हुए हैं। तो हम हर प्रोडक्शन को और इस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट की जगह थी वहाँ पे हमने टैक्सेशन लगाई हुई थी, जिसकी वजह से इकॉनमी चल ही नहीं सकती थी। तो हमने ये सोचा कि नहीं, हमें टैक्स लगाना है तो इनकम पे और कंजम्पशन पे। तो आप देखिए कि जी के 88, 89 और अर्ली 2000 में 45% हमारा टैक्स जो इकट्ठा होता था वो कस्टम ड्यूटी से आता था, और 5-6 से ज़्यादा बल्कि 15% के करीब एक्साइज ड्यूटी से आता था। इनकम टैक्स का और सेल्स टैक्स का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं थी उसमें, 20-30% थी उनकी। बाकी सारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन कस्टम ड्यूटी से और एक्साइज ड्यूटी से। तो ये पहली मैसिव चेंज आई कि जी कि हमने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया ताकि लोग जब कंजम्पशन करें तो उसको टैक्स लगे। अब होना तो एक ही टैक्स चाहिए था, चाहे वो इनकम पे हो जाए चाहे एक्सपेंडिचर पे हो जाए, लेकिन चूंकि इनकम भी इवेड होती है और लोग पूरी तरीके से अपना वो बिजनेस भी नहीं बताते, तो इसलिए मजबूरी में दो तरह के टैक्स लगे हुए। और रिलायंस ऑन कस्टम ड्यूटीज़ एंड रिलायंस ऑन एक्साइज ड्यूटीज़ ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। रफली 10-15% से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता था। इसी तरीके से हमने ये कहा कि ये जो लोग इसको ऑपरेट करते हैं इनके ऊपर भी इन्वेस्ट किया जाए, कि इनको पता लगे कि जी के टैक्स कैसे इकट्ठा किया जाता है, इसके बेसिक कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या हैं, फेयरनेस, जस्टनेस, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्विटी, ये सारी बातें होनी चाहिए। तो वो जब हमने किया और कॉरपोरेट कल्चर को प्रमोट किया तो काम चलना शुरू हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जी के दो तरह के लोग हर वक्त मुआशरे में पाए जाते हैं। एक होते हैं स्टेटस कोइस्ट, उनका काम ही यही है कि जी जैसे मैं कर रहा हूँ बस वैसे ही करना है। दे डू नॉट लिसन टू एनी चेंज, यानी उनके दिमाग में तब्दीली जो है वो आती ही नहीं है कि जी एक पॉजिटिव थिंकिंग करें, देयर इज़ एन अल्टरनेटिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वो बिल्कुल सोचते ही नहीं है, बस जी यही करेंगे। और उनका हाल वही होता है फायर फाइटर्स वाला कि बस वो आग लगी है उसको बुझाएंगे, फिर आगे जाके तो अपने फायर स्टेशन पे बैठ जाएंगे, फिर आग लगेगी इंतज़ार करेंगे, आग लगेगी फिर जाएंगे आग बुझाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा सारा सिस्टम जो है वो फायर फाइटिंग पे लगा हुआ है। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं कि जो रिस्क लेते हैं और रिस्क कभी कभी रिस्क में मार भी खाते हैं, और वो रिस्क लेने वाले भी होते हैं। नॉर्मली तो लोग रिस्क अवर्स होते हैं, लेकिन कुछ रिस्क लविंग लोग भी होते हैं। चेंज हमेशा आती है जब वो रिस्क लविंग लोगों के हाथ में बात जाती है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके की ब्यूरोक्रेसी हमें मिली हुई है, इनहेरिट की हुई है, और जिस तरीके का जुडिशल सिस्टम है, जिस तरह से हम ब्यूरोक्रेसी को काम करने से रोकते हैं, वो चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे वो फिर वो डिस्करेज हो जाते हैं, और वो फिर रादर देन टेकिंग रिस्क वो फिर वो स्टेटस क्वोज बन जाते हैं। अब मसला ये है कि जी कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द पॉलिसी में 19-20 हो सकती है, क्योंकि दिस इज़ ए मैन मेड पॉलिसी, इसमें प्रॉब्लम हो भी सकती है। पॉलिसी में तब चेंज करना जो है वो तो उसमें तो कोई भी, इट्स ए लिविंग डॉक्यूमेंट विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन होता क्या है कि जब पॉलिसी रिवर्सल शुरू हो जाती है तब काम खराब हो जाता है। अब एक पॉलिसी जो लगाई गई थी टैक्सेशन के केस में, मैं ज़रा थोड़ी क्विकली ये बात करना चाहता हूँ। हमने ये सोचा था लेट 80s और अर्ली 90s में कि अगर हम टैक्स रेट को कम कर देंगे
तो टैक्स रेट करने से, कम करने से लोगों को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, चाहे वो कॉरपोरेशन है या इंडिविजुअल है या कारोबारी आदमी है। रेट को कम करेंगे तो खुद ब खुद लोग, देखिए पहली बात ये है कि ये हमें समझना चाहिए कि हमारी जो कौम है ये इसमें ऑनेस्टी है। अगर हम इस प्रेमिस से हट जाते हैं और हम ये कहते हैं कि लोग चोर हैं, लोग करप्ट हैं, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो पहला काम ये किया गया था कि जी कि टैक्स रेट को कम किया जाए। आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट जो रेट्स थे वो बैंकिंग कंपनीज पे 70% थे। एक ज़माना था 70% का रेट था, फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर पे जो 65% और जो पब्लिक कंपनीज थी उन पे 60% हुए। ये सारे रेट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इनको रिड्यूस करके 35% पे लेके आए बाय ईयर 2000, और आजकल वो 30 पे ले गए। आप सोचिए कि एक कारोबारी बंदा हो, चाहे वो बैंक हो या कुछ भी हो, जो 100 रुपये की उसका मुनाफा आता है उसमें से 70 वो टैक्स दे दे, 30 अपने पास रखे, तो वो क्या फर्दर किस तरह से उसको ग्रो करेगा। आज सिचुएशन ये हो गई थी कि जी कि वो 70 अपने पास रखता था, 30 गवर्नमेंट को टैक्स देता था, और उसके बावजूद टैक्स जो है वो पूरा मिलना शुरू हो गया था। यानी व्हेन द रेट इज़ लो, बेस ब्रॉडन हो जाती है और टैक्स कलेक्शन आसान हो जाती है। बाय 2004 वो जो स्टेटस कोएस थे और जो पीपल हु वर एडवर्स टू रिफॉर्म, उन्होंने फिर जाके तो इस पॉलिसी को रिवर्स करना शुरू कर दिया। आप देखिए कि जी कि ओवर टाइम जीएसटी का रेट 15 से 16 किया, 16 से 17, अब 18, और अब कुछ कमोडिटीज़ पे 25% का जीएसटी लग गया। यानी आप कितना जुल्म है कि आप रेट को इस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीज करते चले जाते हैं, और फिर हमने डिस्क्रिमिनेशन कर दी। ये फाइलर है तो इसको इतना विद होल्डिंग रेट बनेगा, और ये नॉन फाइलर है तो इसको ये देना पड़ेगा, बजाय इसके कि अपना सिस्टम ठीक करें कि लोग नॉन फाइलर ना रहें बल्कि फाइलर हो जाएं। उसको हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखिए तो कस्टम ड्यूटीज़ के साथ हमने एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी, फिर हमने उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगा दी, टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स। इतनी मेहनत के साथ टैरिफ रैशनलाइजेशन की, जिससे ये पता लगे कि जनाब जो फिनिश्ड गुड है उसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ, जो प्राइमरी गुड है उसके ऊपर मिनिमम टैरिफ, ताकि ये लोगों के लिए कारोबार करना आसान हो जाए। जब आप एडिशनल ड्यूटीज़ और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगाएं, वो सारा जो आपने टैरिफ रैशनलाइजेशन का प्रोसेस किया था वो सब ख़राब हो गया, फिर अनॉमलीज क्रिएट हो गए। तो ये प्रॉब्लम ये है कि जी कि हमने जो अच्छी पॉलिसी लगाते हैं उसमें उसको रिवर्सल हो जाती है। ये जो रिवर्सल ऑफ पॉलिसी है, इट इज़ मोर डैमेजिंग देन एनीथिंग एल्स। तो ये मेरे ख्याल में ये कहना कि जी कि लोग चोर हैं और ये है और वो है, वो नहीं है। ये इसमें ये जो माइंडसेट है कि जिसमें पॉलिसी को चलने नहीं देना बिकॉज ऑफ सम सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट, वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वगैरह तो अदरवाइज कोई ये वेस्टेड इंटरेस्ट को वाज़ेह भी तो कर देना। हमें बताएं वेस्टेड इंटरेस्ट कौन है। हम तो पाइड में ये सोचते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट जो है एफबीआर के अंदर लोग बैठे हुए हैं और मिनिस्ट्री के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। नंबर 2 जो बात एक इसके साथ ही डील कर लें, यूनिवर्सिटीज क्या रोल प्ले करती हैं सब टैक्स पॉलिसी में? व्हाई यूनिवर्सिटीज नॉट सेइंग एनीथिंग और आर दे सेइंग एनीथिंग? देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ये दे आर एवरीवेयर। मैंने एक स्टडी, अपनी मिसाल इसलिए देता हूँ कि जी कि मुझे औरों की इतना पता नहीं है। 2005 में मैंने एक स्टडी की टेक्सटाइल सेक्टर पे कि जी टेक्सटाइल सेक्टर कितना टैक्स पे करता है, शुगर का सेक्टर जो है ये कितना टैक्स पे करता है, और सीमेंट वाले कितना टैक्स पे करते हैं। मैंने इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेशन करना शुरू किया। आपको ये सुन के हैरानगी होएगी कि टेक्सटाइल सेक्टर नेगेटिव टैक्सेशन है, यानी हम उनको सब्सिडी देते हैं रादर देन दे पेइंग एज टैक्सेस। और टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो हमारा मुल्क का सबसे बड़ा सेक्टर है। इकोनॉमिक सर्वे जब उठा के देखें तो वो ये कहेगा जी 60% ऑफ
आवर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इतने % एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इतना इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करता है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जी कि नेगेटिव टैक्सेशन वहाँ से निकलती है। दे रिलाई ऑन BMR, मॉडर्नाइज बैलेंसिंग वाला जो है, या फिर R&D के ऊपर। और अभी वो उन्होंने वो एक और वो जो इजी फाइनेंसिंग वाली स्कीम आई थी उसके ऊपर वो दे सर्वाइव। और जब उनसे बात करते हैं तो वो इतना स्ट्रांग उनका माफिया है कि जो आपको काम भी नहीं करने देता। तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट की एक एग्जांपल मैंने दी है। इसी तरीके से अगर आप देखें शुगर को, तो वो 1% टैक्स देते हैं, सिर्फ 1% ऑफ टोटल हमारा जो इनकम टैक्स में से उनकी कंट्रीब्यूशन है। आप इमेजिन करें कि इंडस्ट्रियल आप एनालिसिस करके तो देखें तो यू विल फाइंड आउट कि जी कि ये सारे का सारा टैक्स जो है विद होल्डिंग से निकल आता है। 65% ऑफ आवर डायरेक्ट टैक्सेस वो विद होल्डिंग से वो काट लेते हैं। और किससे काटते हैं? मजदूरों से काट लेते हैं, जिनकी वैसे भी टैक्स लायबिलिटी कोई नहीं बनती। जो अपना वो फ़ोन को चार्ज करने जाता है उससे टैक्स काट लेते हैं। और विद होल्डिंग एजेंट्स के थ्रू सारा काम हो रहा है, वो अपने अफसर भी नहीं वो उनका काम करता। तो बेसिकली तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट तो इज़ टू मच देयर। ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब। इसको अब बुलंद आवाज़ से कोई कहे तो बात है, लेकिन हमारे मुल्क में तो हम अब सभी डरने लग गए, कोई कहता ही नहीं। इतना बड़े बड़े माफियाज हैं कि जी के बात करते हुए वो जो है ज़ुबान डरती है। दूसरी बात आ जाती है एकेडेमिया की। अब एकेडेमिया की अनफॉर्चुनेटली मैं 15 साल हो गए पिछले, मैं नस्ट के साथ लगा हुआ हूँ, तो मुझे अब सही पता है कि जी कि हमारी जो फैकल्टी है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अनफॉर्चुनेटली बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी थके हुए टीचर हैं, और छोटी यूनिवर्सिटियों का तो जिक्र ही ना कर। ऐसी ऐसी जगहों से यूनिवर्सिटियां डिग्री लेके आ गए हैं लोग कि जिनका बड़ा ही प्रॉब्लम है, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज सो पुअर। लेट मी से दिस थिंग, एंड आई एम सिटिंग ऑन ए यूनिवर्सिटी, और मुझे पता है कि लोगों को ये शायद बात बुरी लगेगी, लेकिन बात ये सच है। हमने अपने स्टैंडर्ड्स इतने नीचे कर लिए हैं। एक वो ज़माना था कि जब हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं वो किसी भी जगह से जाके तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हम compete करके आते थे। आई competed myself, ये बैठे हुए दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में गए थे, शिकागो में compete करके आए हैं, पास होके आए हैं। मैं जॉन्स हॉपकिंस से पास होके आया हूँ, फेल तो नहीं होके आए। अब जाए, अब हमारे बच्चे जो हैं, जो जाता है वो वापस नहीं आता, वापस वही मुड़ के आता है कि जिसके पास जो है ना वो थकी हुई यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है। ये तो इस तरीके से तो एकेडेमिया जो है कैन नॉट कोलैबोरेट विद द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, उसको इकोनॉमिक मैनेजमेंट का सबक ही नहीं आता। दे डोंट नो व्हाट इज़ इकोनॉमिक मैनेजमेंट। मैं अभी रास्ते में आते हुए इन लोगों से, शाफ से और वो अहमद से पूछ रहा था कि यार मुझे बताइए कि स्टैगफ्लेशन क्या है और स्टैगफ्लेशन को हम किस तरह से एड्रेस करें। सारा रास्ता इस्लामाबाद से इधर तक हम पहुंच गए यही बातें डिस्कस करते करते कि जी कि ये मुझे बताइए कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है और उसमें कौन सी पॉलिसी लगाई जाए ताकि ये जो है इसको हम एड्रेस करें। आर वी गोइंग थ्रू ए फेज ऑफ स्टैगफ्लेशन, एंड इफ यस व्हाट सॉर्ट ऑफ ए पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड। और क्या हमारा गवर्नर स्टेट बैंक कर रहा है बैठा हुआ, इज़ ही अप टू द मार्क के जी कि वो उसको एड्रेस कर रहा है या नहीं? क्या हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है उसको एड्रेस कर रही है या नहीं कर रही है? अनफॉर्चुनेटली जवाब ये निकल रहा था कि जी कि वी आर लाउजी, वी आर नॉट डूइंग द जॉब। हमें प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको डायग्नोज नहीं कर सकते, उसको एड्रेस कैसे करेंगे? हम चाहते ये हैं कि बाहर से IMF के आ जाए एक्सपर्ट्स, वो आके हमें डिक्टेट करा दें, या फिर हमारे जो इधर मुल्क में बैठे हुए कोई कंसल्टेंट्स हैं जो उनके साथ चल रहे होते हैं, वो हमें आके तो पॉलिसी बता दें। तो वही चल रही है। एकेडेमिया में तो अनफॉर्चुनेटली लोग ऐसे मौजूद ही नहीं है कि जो अपना सर बाहर निकाले। सर बाहर निकलेगा तो गोली लगेगी, आज मरेंगे कल को फिर से बाहर निकालेंगे। इफ वी कैन डू दैट ओनली वी कैन सर्वाइव। हम तो इसमें हमारी काबिलियत ही खत्म हो गई है। लोग कहते हैं स्टेम एजुकेशन होएगी तो दुनिया तरक्की करे, मुल्क तरक्की करेगा। What is STEM? STEM is science, engineering, technology और मैथ्स।
इधर लड़कियां बैठी हुई हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैथ्स का नाम लो लड़कियां पहले भागती हैं इधर से कि नहीं जी नहीं, क्वांटिटेटिव तो मुझे आता नहीं है, मैं आई एम वीक इन क्वांटिटेटिव। ये लड़के जो हैं ये भी आसान रास्ते ढूंढने लग गए, अब जाके गवर्नेंस के इश्यूज के ऊपर टैकल करने, हार्डकोर इकोनॉमिक्स पढ़ना भूल गए। इनसे मैं कहता हूं कि हार्डकोर इकोनॉमिक्स पढ़ो, इनको समझ ही नहीं आती कि जी हार्डकोर इकोनॉमिक्स क्या होती है। अरे जब तक आग में से नहीं गुजरोगे तो कुंदन कैसे होगे। एक धात जो है, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे कुछ भी हो, आग में से गुजरेगा तो उसका कुछ ना कुछ बनेगा, अदरवाइज तो वो बिल्कुल ऑर्डिनरी सी चीज़ पड़ी होती है। अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़ेंगे, अपने आप को दुनिया में compete करने के बराबर बनेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी, अदरवाइज तो हम सड़क पे चलते हुए लोगों की तरह हैं। जिस तरह उस बेचारे को कुछ नहीं आता, इस तरह हमें कुछ नहीं आता, सिर्फ डिग्री कागज़ का टुकड़ा लेके फिर रहे हैं, नौकरी नहीं फिर मिलने लगी। आप वेरी गुड असद साहब, रियली वेरी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज। शाफ साहब ज़रा जल्दी से बताइए, ये जो असद साहब ने बातें की बड़ी अच्छी बातें की हैं एंड दे आर वेरी इन कीपिंग विद व्हाट वी डू एट पाइड। ये बताइए कि जो आपके चार्टर ऑफ इकोनॉमी में हमारे रिफॉर्म के आइडियाज़ विद रिगार्ड टू पॉलिसी, सिविल सर्विस रिफॉर्म, लोकल गवर्नमेंट, इस पर क्विकली समरी दे दें, क्या है? सर सो बेसिकली जो हमने रिफॉर्म, जैसे मैंने पहले भी कहा, दो तरह के रिफॉर्म्स हमने उसमें रिकमेंड किए। एक हमारे गवर्नेंस रिफॉर्म्स थे। गवर्नेंस रिफॉर्म्स में सबसे पहले हमारे पास एक आते हैं जो हमारे इलेक्टोरल और पार्लियामेंट के रिफॉर्म्स हैं, जिसमें हमने ये कहा कि जितने भी इलेक्शंस हैं वो स्टैगर्ड इलेक्शंस होने चाहिए, यानी कि इलेक्शंस इकट्ठे एक ही टाइम पे ना हो, बल्कि मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ चीज़ों के इलेक्शंस हों। एक साल नेशनल असेंबली के, एक साल प्रोविंशियल असेंबली के, एक साल सेनेट के, और वो भी डायरेक्ट हों, अवाम इलेक्ट करे वो किसको चाहते हैं कि अपर हाउस में उनको रिप्रेजेंट करे, और एक साल लोकल गवर्नमेंट के उसमें हो। क्यों? ताकि हुकूमत को भी फीडबैक मिलता रहे साल ब साल कि लोग उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं, ताकि अगर एक साल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लोगों ने उनको अच्छा फीडबैक दिया अगले इलेक्शंस में, तो उनको पता हो कि हमने ये पॉलिसीज और ये फैसले आगे लेकर चलने हैं। पॉलिटिशियन तो ये चाहते नहीं है। पॉलिटिशियन तो कहते हैं सब इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, 5 साल के लिए हम सेट होके बैठ जाए, कोई उनको चैलेंज ना करे। क्या ये ठीक नहीं है? वो कहते हैं कि हमें तो 50 साल चाहिए पॉलिसी बनाने के लिए। सर हमने एक इसी वजह से हमने एक एक्सरसाइज की, ये देखने के लिए कि हमारा एक गवर्नमेंट का एवरेज टेन्योर कितना रहा। तो वो गवर्नमेंट चाहे किसी भी वजह से ख़त्म हुई हो और वो किसी भी दौर में वज़राए आज़म रहे हों, जो एवरेज टेन्योर एक वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में आया वो 2 साल और 9 से 10 माह रहा। यानी कि इवन एक्सरसाइज, इवन प्रैक्टिकल में हम देखें तो शायद मुख्तलिफ वजूहात की वजह से 5 साल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत लंबा पीरियड है। आप इवन यूएस में देखें, वहाँ भी टेन्योर जो है वो 4 साल का है। दुनिया में मुख्तलिफ तरीक़ों से टेन्योर छोटे किए गए हैं ताकि एक कंपटीशन रहे इलेक्शंस में, एक कंपटीशन रहे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। की रिकमेंडेशन है कि 3 साल हो टेन्योर, ठीक है जी। अब मुझे बताइए इफ्तिखार साहब, ये जो है फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट जी, इस पे क्या हमारी तहकीक है? सर फुटप्रिंट तो ये है कि 67% ऑफ द जीडीपी जो है वो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के इदारों ने काबू की हुई है और उनके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सो इसमें अगर आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को देख लें, सो दैट्स द ह्यूज लॉस। 2006 से स्टील मिल बंद है, रेलवे खसारे में है, पीआईए खसारे में है। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम रेगुलेशंस दे के सिस्टम को फैसिलिटेट करना है, लेकिन वो उस तरह कर नहीं पा रहे और उसी का बोझ अब हम उठा रहे हैं, डायरेक्टली भी और इन टर्म्स ऑफ दिस सर्कुलर डेट एज वेल। इसी तरह देखे जाए अगर के फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि हुकूमत 70% इकॉनमी को कंट्रोल करती है, पर उसके साथ 70% सिर्फ नहीं है, डेड कैपिटल भी शामिल करें। ज़रा डेड कैपिटल जो है, डेड कैपिटल है जो सरकारी ज़मीन इन्होंने काबू की हुई है शहरों में, वो बहुत बड़ा सोना है हमारा, जो उसको शामिल करें तो तकरीबन 80% हुकूमत को हो जाता है। तो अतर साहब फिर बंदा इन्वेस्ट कहाँ करे? अगर गवर्नमेंट ने 80% कंट्रोल किया हुआ है, जगह कोई इन्वेस्टमेंट की है कोई नहीं, और ऊपर से टैक्सेशन पॉलिसी ऐसी है कि रोज़ शाम को आपके घर आ जाएंगे वो भत्ता लेने के लिए, और जनाब आपको विद होल्डिंग टैक्स में 10% देना पड़ेगा, 15%, 20%, 100%। तो बंदा यहाँ काम कैसे कर सकता है?
सबसे पहली बात तो ये है कि जी कि किसी ने मुझे पूछा कि जी कि हमारी सेविंग्स नहीं है, और अगर इकनॉमिक सर्वे को भी आप उठा के रखें तो सेविंग रेट बड़ा लो है, उसमें 12-13% हमारी सेविंग रेट दिखाया जाता है। तो मैं उससे, जिसने भी वो सर्वे लिखा हुआ है, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा तो अगर सेविंग्स नहीं है तो ये इतने बड़े DHAs और बैरियर टाउन ये कहाँ से आ गए, ये लोगों ने कहाँ से खरीद लिए? ये जो मुल्क में ज़मीनें ख़त्म होती चली जा रही है, आम के जो हमारे ऑर्चर्ड्स हैं उनकी जगह पे हमने घर बना लिए। वो मेरा घर जो है वो स्वां गार्डन में है, जो स्वां रिवर के साथ है, जहाँ वो जानवरों के रहने की जगह थी, हमने उसके ऊपर भी कब्जा करके तो अपने घर बना लिए। कोई जगह नहीं छोड़ी, पहाड़ हो, मैदान हो, रेगिस्तान हो, दरियाओं के किनारे हो, सब जगह अपने घर बनाते चले जा रहे हैं। ये पैसे किधर से आ रहे हैं? अगर सेविंग इतनी लो है तो पैसे कौन लेके आ रहे हैं, किधर से आके लेके आ रहे हैं? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जो आपने फरमाई है वो वही है कि जी के लोगों के पास एवेन्यूज़ नहीं हैं कि वो अपनी सेविंग्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करें। हमारा जो दो ही तरीके हो सकते हैं कि या तो आप अनप्रोडक्टिव रियल एस्टेट में लगाते चले जाएं, जो कि हम लगा रहे हैं, और फिर आप कहें कि जी मैंने 3 करोड़ का प्लाट ख़रीदा था, अब 6 करोड़ का हो गया, सो व्हाट। मैं तो लोगों से पूछता हूँ, जो 10 करोड़ का भी हो जाए तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? उसमें से क्या निकलेगा? आपने तो यही जो कपड़े पहने हुए हैं यही पहनोगे, वो 10 करोड़ साथ ले जाओगे, या तो डेट कैपिटल में लगाते चले जाए, या फिर आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। दूसरा एवेन्यू ये होता है कि मैं अब जाके, मैं तो इंडस्ट्री लगा नहीं सकता या मैं कोई दुकान खोल नहीं सकता हूँ, तो दूसरा हमारा तरीका जो इंटरनेशनली होता है वो ये होता है कि यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। आप बड़ी जो कंपनीज होते हैं उनके स्टॉक्स खरीदते हैं और फिर उसमें से आपको कैपिटल गेन होना शुरू हो जाता है। ये दूसरा तरीका है। अब मसला ये है कि जी के टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट आई नीड टू नो कि जी के स्टॉक मार्केट क्रेडिबल है या नहीं है। हमारे मुल्क में स्टॉक मार्केट इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। 4-6 बंदे जिनके साइज़ जिस्म के भी बहुत बड़े हो गए हैं और उनकी दौलतें भी बहुत बढ़ गई हैं, वो लोगों के हाथ में वो कपड़े, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप भी जानते हैं कि वो लोग कौन हैं कि जिन लोगों ने शाम को कॉफ़ी के ऊपर बैठते हैं और वो सुबह के लिए डिसाइड कर लेते हैं कि सवेरे ये वाला स्टॉक चढ़ाना है, ये वाली जो है इसकी कीमत चढ़ानी है, ताकि वो लोगों का पैसा हड़प करें। दूसरा हमने बनाया म्यूचुअल फंड्स को। एक म्यूचुअल फंड होता था, वो सबको प्रॉफिट दे देता था, जो नेशनल बैंक वालों का था। अब हर एक ने अपने म्यूचुअल फंड बना लिए हैं, चाहे वो JS के हों, चाहे दूसरे के हों, तीसरे के हों। उसके पीछे जो गवर्नमेंट की बैकिंग होती है वो अवेलेबल नहीं है। वो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो आपके पैसे के ऊपर वो अपना इंटरेस्ट और बाकी सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, एंड सडनली दे विल टेल यू कि जी कि वो आपके पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे, वो तो जी गए क्योंकि स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गए। अरे भाई, मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू किया है। वो इंस्टीट्यूशन में सपोजिटली पीपल हु आर वेल अवेयर ऑफ दैट सिचुएशन उनको दिया है, उन्होंने मेरे पैसे डुबो दिए। वो इस वजह से नहीं कि जी कि दे आर वेल अवेयर, दे प्रोटेक्ट देयर मास्टर्स। तीसरी बात ये आ जाती है कि हमारे मुल्क में है सेठ कल्चर, इसका आप भी बहुत जिक्र करते हैं और आई आल्सो सब्सक्राइब टू दिस। और अगर आप एशियन इकोनॉमीज़ की बात करें कि जी वो टाइगर्स और उसके बाद दूसरे टाइगर और तीसरे टाइगर, आपने कभी सोचा है कि मलेशिया और इंडोनेशिया उस तरीके से तरक्की नहीं कर सके जिस तरह से कोरिया और ताइवान वाले कर गए थे? इसलिए कि मलेशिया में भी और इंडोनेशिया में भी सेठ कल्चर है। हमारे पास वो सेठ कल्चर उससे भी बड़ा है। सेठ कल्चर कभी इनोवेशन पे बिलीव नहीं करता। सेठ कल्चर को एक्सप्लेन भी कर दे जरा प्लीज। सेठ कल्चर यही है कि जनाब वो वन मैन शो होता है कि एक ही फैमिली में बिजनेस चल रहे हैं और उसमें कोई वो नहीं है। उसको मैं प्रॉपरली और तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वही है कि जहाँ पे वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के साथ वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर नॉट ओपन टू इंटरनेशनल कंपटीशन
और वो जो प्रोफेशनलिज्म जो होना चाहिए कॉरपोरेट सेक्टर में वो नहीं होता उसमें। तो जिनमें थोड़े हैं, अब हमारे पास चंद एक ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें आनी शुरू हुई हैं, दे आर ग्रोइंग, लेकिन मोस्टली वही हैं जो सेठ कल्चर के साथ चलते हैं। उस सेठ कल्चर में वो जो है दे डोंट रिलाई ऑन इस तरह के पैसे पे, वो दे रिलाई ऑन देयर ओन मनी। तो वहाँ पे भी आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो जब जिस मुल्क में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हों, और वेन एवर यू ट्राई टू इन्वेस्ट एंड देन देर इज़ नो सेफ गार्ड फॉर योर फाइनेंसिस, तो आप सोचें कि वही होता है जो हमारे मुल्क में हो रहा है। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, चलें, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस एज वेल। एनीबडी प्लीज हाथ खड़ा करें, माइक पास कर दें जी इन्हें, जो भी क्वेश्चन पूछेगा जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। दिस इज हमजा खान फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मेरा क्वेश्चन शाह साहब से है। सर, जिस तरह आपने बताया कि इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग में गवर्नेंस की इश्यूज है, तो पिछली गवर्नमेंट ने जो एक इनिशिएटिव ली ई गवर्नेंस की, किस तरह हम उसको देख सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग है या एनहांसमेंट है, इसमें ई गवर्नेंस का रोल क्या है और किस हद तक जो है वो हमें इस बढ़ती हुई क्राइसिस से निकाल सकते हैं? थैंक यू सर। देखिए, ई गवर्नेंस जो है वो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो प्रोसेस से मुताल्लिक है कि एक दफ्तर में प्रोसेस क्या वो हार्ड फाइल में चलेगा या वो थ्रू आप कह सकते हैं डिजिटल मींस थ्रू कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह होगा। मसला उससे ज़्यादा मेरी नज़र में जो है वो है कि उसके पीछे बंदा कौन है। अगर वही शख्स वही माइंडसेट प्रिवेल कर रहा है तो चाहे वो चीज़ फाइल पे चल रही है या वो ई गवर्नेंस टूल्स के ज़रिए चल रही है, वो प्रोसेस कभी भी स्ट्रीमलाइन होके कभी भी तेज़ नहीं हो सकेगा, कभी भी वो पॉलिसी नहीं डेवलप हो सकेगी। टूल से ज़्यादा अहम ये है कि टूल यूटिलाइज कौन कर रहा है। और मेरे ख्याल से हमारा शाह साहब, इसका सिंपल सा सवाल है, फीते वाली फाइल तो अभी तक मौजूद है। ई गवर्नेंस तब आएगी जब ई गवर्नेंस अडॉप्ट करेंगे हम। फीते वाली फाइल अभी तक चल रही है भाई। ई गवर्नेंस जितनी मर्जी लगा लें, वो जो सेक्शन ऑफिसर और सेक्रेटरी है वो फीते वाली फाइल चलाता है। तो जब तक आप फीते वाली फाइल को जला नहीं सकते तो कुछ नहीं होगा। इस मुल्क में 10 दरख्त तो हर रोज ज़ाया होते हैं बिकॉज ऑफ फीते वाली फाइल। जी कोई और? ये औरतों को भी दें ना भाई, सिर्फ मर्द ना डोमिनेट करें। दिस इज मिस्टर माना मालाकंड में है पर औरतों को भी दें। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड माय क्वेश्चन इज फ्रॉम शाफ नजीब। सर, आपने बात की कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं वो तमाम एक ही टाइम पे नहीं होनी चाहिए, मतलब नेशनल असेंबली का एक टाइम पे और प्रोविंशियल का किसी और टाइम पे। तो सर, डज इट सूट द कल्चर ऑफ पाकिस्तान? जैसा कि अगर यहाँ पे पंजाब में अगर PMLN की गवर्नमेंट हो और उस वक्त नेशनल इलेक्शंस भी दे आर टेकिंग प्लेस, तो क्या आप समझते हैं कि वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे? पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा ये है कि आपने बात की कि जो अपर हाउस है मतलब सेनेट, वो भी डायरेक्टली इलेक्ट होना चाहिए। तो जब लोअर हाउस भी डायरेक्टली इलेक्ट हो, अपर भी, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे? एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश उस दोनों के दरमियान नहीं आएंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात ये आपने कहा कि अगर एक गवर्नमेंट मौजूद है और उसके अंडर दूसरे इलेक्शंस होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इज सपोज टू बी इंडिपेंडेंट। अगर आपकी गवर्नमेंट इलेक्शंस पे असरअंदाज हो रही है तो ये आपके जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं ये वहाँ का मसला है। अगर हम दुनिया में भी देखें, हम इंडिया में देखें, US देखें, UK देखें, वहाँ गवर्नमेंट बैठी होती है तब इलेक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो रिस्पॉन्सिबल है उसके पास ये पावर है और वो इंडिपेंडेंट है ये कराने के लिए। दूसरा, जहाँ आपने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ सेनेट की वजह से इंस्टीट्यूशनल क्लैश, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि सेनेट का और नेशनल असेंबली लोअर हाउसेस का जो रोल है वो डिफाइंड है लॉ में। तो जब तक वो रोल अपने रोल में काम करेंगे तो किसी किस्म का मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंस्टीट्यूशनल क्लैश आएगा। दिस इज शुमाइला फारूक फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज टेमरगारा। सर, जिस तरह से आपने भी कहा कि मेरा घर यहाँ इस जगह है जहाँ पर जानवरों की रहने की जगह है, मतलब ये कि वी आर a lot of crisis in economy, but we faces challenges and climate and climate. So just like the fresh water resources are depleting, the water surface of Panchkola and river Sawat are polluted day by day.
सो अगर आप लोगों ने भी देखा है, हमने भी देखा है कि जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पे जो आजकल के हालात हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, इट्स फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द टूरिस्ट, कि उसकी थ्रू हमारी इकोनॉमी टूरिज्म के थ्रू जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। बट ऑन द अदर हैंड वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है, सो how the charter of economy can balance strike a balance between the natural resources and the protection of the natural resources and the growth of the economy. अच्छा जी, बेसिकली हमारा इको टूरिज़म पे एक पूरा सेशन है, तो डेफिनेटली जो स्पेसिफिक डिस्कशन है ज़्यादा डिटेल में तो वहाँ हो पाएगी, बट इट्स डेफिनेटली एन इशू। जस्ट अ मंथ बैक there was a first regional conference of PhD in Gilgit Baltistan, और वहाँ जो सबसे बड़ा इशू आया है, इट्स अगेन बिकमिंग अ जंगल ऑफ कंक्रीट। सो वहाँ पे फैसिलिटेशन है, लेकिन जिस तरह अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता दूँ कि वी हैव बट कढ़ाए tourism. What about ecotourism? It's a big question, and let's learn in that specific session. Hello sir, my name is Jasur Hussain from Department of Economics. Sir, my question is नदीमुल हक सर, जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट और बिहार दोनों कह रही है कि हम टैक्स चोर है, तो सर एक टैक्स एवेजन होते हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इलीगली है और ही हु इन्वॉल्व इज द कल्प्रेट, एंड सर एक टैक्स अवॉइडेंस होते हैं थ्रू इंटेलेक्ट, थ्रू इकोनॉमिक्स नॉलेज, थ्रू अकाउंटेंसी नॉलेज, वो टैक्स कम करना है। तो सर इसमें किसको कौन सा वाला जो है वो इकानमी के लिए डेंजरस है और किसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है? सर देखिए, जितना मुझे समझ आई है, मैं ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी समझने में, टैक्स अवॉइडेंस जो होती है वो टैक्स लॉज के लूप होल्स को इस्तेमाल करके तो लोग जो टैक्स बचा लेते हैं उसको अवॉइडेंस कहते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो दे देते हैं। मसलन अगर आपने जून के महीने में कोई आपको लेट्स से के पेमेंट मिलनी है, तो आप उनको कह देते हैं कि जून में ना दें, जुलाई में दे देना, तो वो जून के महीने में वो पेमेंट नहीं आई, तो इसलिए उसको आप टैक्स नहीं देंगे, जुलाई में लेकिन देना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पिछले महीने में हो सकता है पिछले साल में ज़्यादा आमदन आई हुई हो। तो इसको तो कहते हैं अवॉइडेंस। ये लीगली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ये तो अवॉइडेंस है लूप होल्स को इस्तेमाल करके। इवेजन जो होती है ये इसमें प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं है, इसमें फिर इसकी पेनल्टी पड़ती है, क्योंकि टैक्स जो है, टैक्स कभी भी लीगल अप्रूवल के बाद बग़ैर नहीं लग सकता। यानी कोई भी टैक्स आप देख लें, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो, प्रोविंशियल लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो, उसकी जो भी पार्लियामेंट होगी, चाहे नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली या इवन लोकल गवर्नमेंट की जो भी लेजिस्लेटिव एजेंसीज होंगी, वो जब अप्रूव कर देती हैं तब वो टैक्स लगता है। तो इसलिए टैक्स जो है वो लेजिस्लेटिव बैकिंग के साथ लगता है, तो उसको जब आप नहीं पे करते तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। 100 के जी के हो सकता है फ़ाइन हो, और अल्टीमेटली वो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये अब पाकिस्तान में ये काफ़ी मौजूद है, क्योंकि हमारा वो जो सिस्टम है वो अवॉइडर्स को भी नहीं पकड़ सकता, तो इवेडर्स को भी नहीं पकड़ सकता, और फिर देयर इज़ कोलैबोरेटिव एफर्ट आल्सो, ये इसमें फिर मसाइल निकल आते हैं। तो ये प्रॉपरली ये जो है अभी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ हुआ। अच्छा सर, मेरा भी इसमें एक छोटा सा सवाल है, फिर मैं वापस जाता हूँ फ्लोर पे। ये जो हमारे मुल्क में डिबेट है, मैं देख रहा था बजट आ गया तो बजट पे 3 दिन, एक तो हमारे मुल्क में ये भी बड़ी अजीब चीज़ है कि हम मेरा ख्याल वाहिद कौम है जो इकनॉमिक तरक्की तो चाहते ही नहीं ना, हम तो बेसिकली 1400 साल पीछे जाना चाहते हैं, अभी तो आगे तो जाना ही चाहते, रियासत मदीना बना रहे हैं ना हम तो। नंबर 2 कि मैं देखता हूँ ये एंकर पर्सन 2-3 दिन के लिए बजट की बात करते हैं, और बजट की बात करते हैं सिर्फ टैक्स जीडीपी रेशो। हमारा सारा फोकस है टैक्स पे। क्या हम इस मुल्क में तरक्की चाहते हैं कि नहीं चाहते, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि नहीं चाहते? मेरा फर्मली मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि लेट द इकोनॉमी ग्रो, यानी जिस चीज़ ने स्ट्रैंगल होल्ड डाला हुआ है उसको निकालो। उर्दू में अक्सर आप ये सुनते होंगे कि मईशत का पहिया चलने दो, उसको ग्रीसिंग करो ताकि चले। जब वो चलेगा तो टैक्स हमेशा बाई प्रोडक्ट होती है, टैक्स कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, टैक्स बाई प्रोडक्ट होती है। जब मईशत चलेगी टैक्स खुद ब खुद निकलेगा। अगर मईशत ही नहीं चलेगी तो टैक्स कहाँ से लेंगे आप? पत्थरों में से खून तो नहीं निकलता।
यू कैन नॉट स्क्वीज ब्लड आउट ऑफ स्टोन्स। तो इसलिए पहले उसको जानदार बनाइए चीज़ को। तो ये जो भी लोग जो हैं ये इस तरीके से ये कहते हैं कि जी टैक्स होगा तो ये होगा, ये बिल्कुल उनका अदर वे राउंड होना चाहिए। इनको इकॉनमी होगी तो टैक्स होगा। इकॉनमी जब नहीं चलती और उसको हम जाके किसी ना किसी तरीके से ओवर रेगुलेशन करते हैं या किसी और वजह से उसके ऊपर जो है वो उसकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है उसको ख़त्म करते हैं, तो उसमें से टैक्स बिल्कुल नहीं निकल सकता। ये एक बिल्कुल सिंपल सा असूल है। मैं तो हमेशा ये कहते हूँ कि जी ये जो विशस साइकिल है इसको वर्चुअस साइकिल बनाना ही कमाल है, और जिनको ये कमाल आता है वही कमाल के लोग हैं। माशाल्लाह। चलिए जी, लास्ट 3 क्वेश्चन बोलिए सर। जी आजमत नाम है, मैं एक डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। जी जी। मेरा क्वेश्चन यही है ना टैक्स के हवाले से कि डॉक्टर यासीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी का उसने एक किताब जरा माइक पास रखें। स्वात स्टेट का सोर्स ऑफ इनकम, द ओनली सोर्स ऑफ इनकम वाज उशर, और इट वाज अ फंक्शनल स्टेट। मतलब एक मरतबा मैं किसी चौक से गुजर रहा था तो वाली स्वाद जो था जो गवर्नर भी रहा था, तो वो एक जगह तकरीर कर रहा था, तो कह रहा था जब स्वात स्टेट हुआ करता था तो सारे पहाड़ इतने लश ग्रीन थे, मतलब हर एक इदारा फंक्शनल था। और फिर वो कहते हैं जब ये पाकिस्तान आ गया तो अपने सर से वो टूटिया, पहाड़ इस तरह खाली है दरख्तों से जिस तरह मेरा सर बालों से खाली है। तो मतलब वो गवर्नर्स के हवाले से भी मैं मतलब स्वात स्टेट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू, द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज उशर। मतलब पाकिस्तान की अदालत है एक लतीफ़ा मैं सुनाता हूँ ना कि ये इस तरह क्यों है, मतलब ये कौन क्यों ठीक नहीं कर रहा। जब वो जंगल में वो मैं एक लतीफ़ा, आई एम सॉरी टू से कि मतलब एक सर अगर काइंडली आप शॉर्ट रख लें, बाकी क्वेश्चंस ले लेते हैं। लतीफ़ा चाय पे पी वो कर मैं इस हवाले से फंक्शनल और पेड स्टेट के हवाले से एक लतीफ़ा कि गवर्नेंस रिलेटेड टू गवर्नेंस, एक गाय भाग रही थी तो रास्ते में उसको हाथी मिला, क्योंकि क्यों भाग रही हूँ, तो कह रहा हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि सारी भैंसों को पकड़ो, तो क्या अब तो भैंस नहीं है, फिर आप क्यों डर रहे हो। एक मरतबा शक में मैं पकड़ी गई तो फिर सारी उम्र घूमती रहूंगी लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह बैड गवर्नेंस क्यों है। तो ये बात सुनते ही वो गाय भी दौड़ना शुरू हो गया। एक मरतबा शक की मतलब मामले में अगर मैं पकड़ी गई तो ये गवर्नेंस इस तरह क्यों है। ये अदालतें मतलब चीफ जस्टिस लगा है डैम बनाने और उसका काम है कितने केसेस पड़े हैं, इंसाफ क्यों नहीं है पाकिस्तान में। मतलब स्वात स्टेट का ओनली सोर्स, हर मरतबा हम ये सुनते आ रहे हैं कि IMF आया टैक्स बढ़ाओ, हर चीज बढ़ती जाए। मतलब हम क्यों मलेशिया की तरह जब 97 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई तो पहले उन्होंने IMF की कंडीशन, स्ट्रक्चरल कंडीशन एक्सेप्ट किए। तो IMF का ये मतलब एडवाइस था कि आपकी रिकवरी यू शेप होगी, पहले आप नज़ूल होगा फिर कुछ अरसे बाद आपकी रिकवरी होगी। जो ही उन्होंने IMF की इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट मतलब स्टेप्स लिए तो उसकी रिकवरी बिल्कुल वी शेप हो गई। आज तक उन्होंने कभी IMF से लोन नहीं लिया। हर काफी अरसे से हम ये सुनते आ रहे हैं IMF से कंडीशन हो गई लोन। थैंक यू सर, थैंक यू, पॉइंट वेल टेकन। मैं 2 बातें करूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं, मैं बड़ा ब्लंट सा एक इंसान हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने ऐसे ही गुजारी है, तो इसलिए मुझे कहते हुए शर्म नहीं आती। देखिए बॉलीवुड की फ़िल्म देखो या हॉलीवुड की फ़िल्म देखो, विलन क्यों क्रिएट किए जाते हैं, इसलिए कि हीरो अच्छा लगे। हाँ? हम लोगों ने गवर्नमेंट को विलन बनाते हैं ताकि हम खुद अच्छे लगने लग जाएं। प्रॉब्लम गवर्नमेंट के विलन होने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम हीरो नहीं हैं। ठीक है, बात ये है कि जी उशर पे चलता था तो उशर अभी भी दे दो ना, किसने मना किया है? अभी क्यों नहीं दे रहे? ज़कात पे अगर मुल्क चल सकता है तो दो, फिर क्यों नहीं देते?
ये जो इस्लामी चीज़ें हैं, ये तो जब ज़कात देने का वक़्त आता है तो बैंक से पहले पैसे निकलवा लेते हैं, या फिर हम जो है जाके एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देते हैं कि मेरी ज़कात ना काटी जाए। क्रेडिबिलिटी के इश्यूज सारी तरफ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट भी तो हमारे ही लोगों ने बनाई हुई है। मेरे माँ बहन, मेरे बच्चे जो हैं वही गवर्नमेंट है, आपके बहन भाई हैं गवर्नमेंट का हिस्सा। गवर्नमेंट कोई और चीज़ तो नहीं होती, ब्रिक एंड मॉर्टर तो गवर्नमेंट को नहीं कहते हम, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारे बहन भाई हैं, वो भी वही हैं जो हम हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ नहीं है, वो जैसे हम हैं वैसी गवर्नमेंट है, जैसे हैं मैं वैसी हमारी क्रिकेट की टीम है, जैसे हम करप्शन करते हैं वैसे ही क्रिकेट में भी वो मैच फिक्सिंग करते हैं, सारी जगह वही होता है। पहले कभी मैच फिक्सिंग सुनी थी आपने? अभी होती है, पहले लोग साफ सुथरे थे, अभी नहीं है। एक तो ये बात हो गई है। दूसरी बात ये है कि जी के देखिए, हमेशा फॉरवर्ड थिंकिंग होनी चाहिए, पेसिमिस्टिक होकर ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। अगेन मैं फिर से बात कहूँगा कि रास्ते में आते हुए मैं ये बात कर रहा था कि मेरे बचपन में जब मैं कभी रावलपिंडी इस्लामाबाद से लाहौर जाना होता था तो या जीटीएस की बस पे जाता था या रेल कार पे जाता था, और 6 घंटे लगते थे, 7 घंटे लगते थे। और अभी मोटरवे के ऊपर बैठते हैं और बेहतरीन नफीस कारें, एयर कंडीशन बसें, और उनमें जाते हैं और यूं यूं पहुंच जाते हैं। अभी पिंडी से पेशावर की तरफ आ रहे हैं, 3 मोटरवेज़ के एग्ज़िट निकले बीच में से, एक मियाँ वाली को जा रही है, एक हज़ारा मोटरवे है, तीसरी ये सवात मोटरवे है। इस कदर ज़िंदगी आसान हो गई है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। लोगों के कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, लोगों के हाथ में फैंसी किस्म के मोबाइल पकड़े हुए हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, लेकिन नाशुक्री इस तरह से कौमें नहीं बनती। जो है उसके ऊपर शुक्र करें। वेरी गुड अदर साहब, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलिए। मेरा सवाल ये है आप तीनों से, अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जब हम इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग की बात करते हैं, मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ, और हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं। तो आप ये देखिए कि जो पिछली हुकूमत थी, तो एक तो ये चीज़ है कि हम एक जो हुकूमत का जो पॉलिटिकल टेन्योर होता है ना 5 साल, हम इसको पूरा करने नहीं देता। हमारी कुछ अना होती है, कुछ हमारी कुछ अपनी अना होती है कि हमने इस गवर्नमेंट के टेन्योर को पूरा नहीं करना, हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगे हुए थे, पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि जब आप ये देखते हैं कि 2013 में जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई थी तो इसको भी टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया था, हालांकि हमारा जीडीपी जो था वो तकरीबन 5.8 पर पहुंच गया था। जब खान साहब की हुकूमत आई तो जो हमारी जीडीपी थी वो 6% पर पहुंच गई थी। अब आप इकोनॉमिक सर्वे को आप जब पढ़ते हैं ना, तो हमारी जो जीडीपी वो कहाँ से कहाँ पर पहुंच गई थी। तो मेरा सवाल ये है कि वो कौन से एलिमेंट है, वो कौन से ऐसे किरदार है जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उनसे उनको मसला है, उनको नुकसान पहुंचता है। थैंक यू सर। देखिए, जब भी इकॉनमी चलानी है तो उसका पहला असूल ये है कि आपके इंस्टीट्यूशंस में स्ट्रेंथ, लोग आते जाते रहते हैं, गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, अगर इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग हों तो काम चलेगा। अनफॉर्चुनेटली ओवर टाइम जो है वो इंस्टीट्यूशंस में डिटेरियोरेशन हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी ग्रोथ चाहिए होती है तो एम ये होना चाहिए कि आपकी ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड हो। ब्रॉड बेस्ड का मतलब ये होता है कि 3 बड़े सेक्टर्स हैं हमारे मुल्क में, और सारी जगहों में तकरीबन यही 3 होते हैं। एक होता है एग्रीकल्चर, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा सर्विसेज सेक्टर। ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ का मतलब ये है कि ये तीनों सेक्टर्स में ग्रोथ हो, यानी एग्रीकल्चर पीछे ना रह जाए, सर्विसेज सेक्टर पीछे ना रह जाए, इंडस्ट्री पीछे ना रह जाए, सभी ग्रो कर रहे हों। उसके लिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए होती है। वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी एट टाइम्स हमें मिस होती हुई नज़र आती है। कभी हम एग्रीकल्चर को फेवर करने लग जाते हैं, कभी हम इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फेवर करने लग जाते हैं, और सर्विसेज तो चूँकि है ही रेजिडुअल, तो उसको तो कभी हम देखते ही नहीं हैं। तो ये ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ होएगी तो काम चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ग्रोथ जो है वो हमेशा प्रोन टू शॉक्स होती है।
शॉक्स जो होते हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। जब इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं या आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया में आ जाती है और बहुत सारे सप्लाई के इश्यूज आ जाते हैं। अभी रिसेंटली कोविड गया है, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन के इश्यूज आए हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये भी आपकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। डोमेस्टिकली भी शॉक्स आ सकते हैं, जिस तरह से इतना बड़ा सैलाब आया है मुल्क में, उसकी वजह से सारी क्रॉप्स जो हैं वो आपकी सिंध में और साउथ पंजाब में ख़राब हो गई, थोड़ी इधर आपके भी इलाके में स्वात में और इधर भी बहुत तबाही हुई है। तो ये भी चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये शॉक्स थोड़ा अतर साहब एक और चीज़, शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, अतर साहब एक और चीज़ भी क्लैरिफाई करते हैं। हमारे मुल्क में एक बहुत ज़्यादा एक अजम्पशन है कि जो भी हुक्मरान आ जाए वो गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे बैठ जाता है फाइनेंस मिनिस्टर, और वो गाड़ी को इधर उधर मोड़ सकता है। इकोनॉमी कोई ऐसी चीज़ है रेसिंग कार की तरह, इधर मुड़ जाए उधर मुड़ जाए, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो मोड़ के ग्रोथ कर दे, एक्सेलरेटर दबा दे। क्या ये चीज़ होती है इकोनॉमी? देखिए, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जी कि इकोनॉमी है क्या है, इसके दो ही तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक होती है ग्रोथ और दूसरी होती है प्राइस स्टेबिलिटी, यानी आप उसको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कह लें। ग्रोथ जो है, अगर आपने मिसाल देखनी है, कोई ज़रूरत नहीं है री इन्वेंट करने की व्हील की कि जी हम नए सिरे से ये तरीका निकालेंगे तो ग्रोथ आ जाएगी। ज़रा अपने दुनिया के अराउंड ही ढूंढ के देख लो कि क्या हुआ क्या है। चाइना की मिसाल ले लो, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, यानी कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा मैं बोला है, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर 10% ग्रोथ, 30 साल तक ईयर आफ्टर ईयर 10% ग्रोथ, 10% ग्रोथ, 10% ग्रोथ। सोचे भला कि एक इकॉनमी जो 10% पे ग्रो कर रही है और फॉर 30 years कंसेक्टिवली उन्होंने 2/3 ऑफ देयर पॉपुलेशन दे वर टेकन आउट ऑफ पॉवर्टी एंड दे आर नाउ एज गुड एज द वेस्टर्न इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो ये जो ग्रोथ है ये लॉन्ग टर्म और सस्टेन्ड होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म एंड सस्टेन्ड। इसमें ज़रूरी है कि जी कि ये गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है जाती है, आती है जाती है, इंस्टीट्यूशंस ऐसे हों कि वो जो ग्रोथ है, वो जो विजन है और जो उसकी स्ट्रेटजी है उसकी एग्जीक्यूशन की, वो कायम रहे, उसमें कोई डिविएशन, माइनर डिविएशन तो आते जाते रहेंगे, क्योंकि रोड के ऊपर भी कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाता है, कभी कोई खड्डा आ जाएगा, तो उस हद तक तो आपने मैनूवरिंग करनी है इकॉनमी की। बट ए लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है, इट शुड बी वेल डिफाइंड हाउ टू डू इट एंड व्हाट आर द ड्राइवर्स जिनको परसू करेंगे तो ये ग्रोथ हमें मिलेगी। ये एक बात है, इसको करना है। उसके बाद दूसरा काम तो स्टेबिलिटी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर करनी होती है। उसके लिए आपके पास शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजीज़ भी हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ भी हैं कि रिफॉर्म करते जाओ। जब देखो कि जी कि अब कच्चा मकान पक्का करना है तो आपको सीमेंट भी चाहिए होएगा, रेत भी चाहिए होएगी, बजरी भी चाहिए होएगी, तो मेक श्योर कि आपके पास सीमेंट, बजरी, रेत मौजूद हो तो आपका कच्चा मकान पक्का हो जाएगा। इसी तरह इकोनॉमी में होता है, कुछ चीज़ें जो है वो टाइम के साथ आपको रिप्लेस करनी होती है। मेक श्योर कि यू हैव द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर विद यू सो दैट यू कैन ब्रिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस। There you go. Thank you very much अतर साहब। मुझे हुक्म आ गया है कि चाय की तरफ चलें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं ये कह दूं कि ये बड़ी अच्छी सेशन शुरू हो गई है। अब माशाल्लाह डिबेट तो सेट हो गई है, बड़ी अच्छी डिबेट सेट हो गई है। वी शैल इंशाल्लाह जो सवालात हैं आपके अगली सेशन में ज़रूर लेंगे। हम चाहते हैं कि बड़ी एक्टिव डिबेट हो, यहाँ बहुत एक्टिव डिबेट। एक चीज़ मैं कह दूँ बड़ी ज़रूरी है, अतर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, पर आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ अतर साहब, एंड आई होप यू विल एग्री विद मी, हमें जो डिबेट इकोनॉमिक ग्रोथ इवेंचुअली जो है वो आप सबकी, हम सबकी मेहनत है, हुकूमत का उसमें कोई रोल नहीं है। जब आप और मैं मेहनत करके कुछ करते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं, कोई नई तरीक़ेकार बनाते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। छोटी सी चीज़, बहुत छोटी सी चीज़, आप सब ने सुना होगा स्टारबक्स। क्या करती है स्टारबक्स? सर, कॉफ़ी बनाती है। If you don't mind, जी I सर। want a question. सर ये अब तो ख़त्म हो गया टाइम, अगली सेशन में पूछ ले। Sir, this question is very important. चलिए जी पूछिए। मेरा नाम डॉक्टर सईद अहमद है और मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। क्या आपके ख्याल में
ये जो हमारा निज़ाम ख़राब से ख़राब तर होता चला जा रहा है, इसका द बेसिक रीज़न फॉर दिस, डू यू कंसिडर कि हमारी जो कुरानिक तालीमात है उनसे डिविएशन है? और इसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्न सबील, कि क़ुरबादार को और मस्कीन को और मुसाफिर को उसका हक दो। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारी मुल्क में जो सूद का निज़ाम है ये बहुत ज़्यादा आला पैमाने पे है। 21% इज़ बेस्ड ऑन दी इंटरेस्ट, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा आतैतुम मिन रिबा लियरबु फी अम्वालिन नास फला यरबु इंदल्लाह, कि जो आप माल देते हैं सूद पे तो ये अल्लाह के नज़दीक परवान नहीं चढ़ता। तो क्या आपके ख्याल में हम पहले से जो टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं, क्या हम उनको दोबारा टेस्ट नहीं कर रहे? क्या हम अल्लाह से और उसके रसूल से हम जंग नहीं कर रहे? जो कि अगर हम मानते हैं कि कुरान पाक जो है हमारे लिए मशाल राह है। आपका सवाल आ गया, जवाब देते हैं। इफ्तिखार साहब जवाब दीजिए। जी सर, आपने बिल्कुल सही बात की। हमारी डेविएशन है बट वाई मैक्रो ओनली, व्हाट अबाउट इंडिविजुअल? हम दो का क्यों करते हैं? हम एज अ टीचर अपना फुल पोटेंशियल क्यों नहीं देते, कन्वर्ट करते? हम एज अ स्टूडेंट जब मैं क्लास में जाता हूँ और बाहर मौसम अच्छा हो तो स्टूडेंट मुझे क्यों कहता है कि मैंने बाहर जाना है, मैंने पढ़ना नहीं है? जब मेरे पास पॉलिटिशियन आता है तो मैं क्यों कहता हूँ कि मेरे नालायक बेटे को आप पीएन भर्ती कर दें? मैं उसको क्यों नहीं कहता कि लोकल निज़ाम किधर है? आप मेरे लिए पार्लियामेंट में नाली और उसकी सियासत ना करें, आप मुझे लेजिस्लेशन दे के दें। अभी 2 महीने बाद इलेक्शन होना है, लेकिन 1 महीने पहले, अभी 10 दिन पहले हमने क्या किया? जो मोटरवे बनी उसको हमने क्यों जलाया? ये पिकेट हमारी विरसा है, जिसने भी बनाया है उसको हमने क्यों जलाया? हम तो एहतजाज भी नहीं कर सकते। तो वो जो है डेफिनेटली वो इश्यूज़ हैं कि जी हमें इस्लाम से डेविएट नहीं करता है। वी आर प्राउडली मुस्लिम्स, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आई कांट स्पीक कि जी आप गलत कह रहे हैं, बट वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, दैट्स द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फोक्स। तो मैं सिंपल सी बात इधर ख़त्म करता हूँ कि हम अपनी मेहनत की तरफ देखें। अपनी मैं स्टारबक्स की बात कर रहा था। स्टारबक्स एक कंपनी कॉफ़ी बनाती है। स्टारबक्स की वैल्यू आपको पता है क्या? $100 बिलियन। क्या हम चाय नहीं बना सकते थे? ये हमारी ना अहली है, इसमें किसी का और ताल्लुक नहीं है। एक छोटी सी कंपनी है ग्लोरिया जीन्स, सारी फैल गई है यहाँ। कोका कोला क्या चीज़ है? बंद करके हमें चीज़ें देते हैं, हम कोका कोला पीते हैं। वैसे तो हम बड़े मुसलमान हैं, पर रोज़ा हम मैकडॉनल्ड में खोलते हैं, ठीक है? टी शर्ट्स हम बाहर की पहनते हैं। देखिए, एक ग्लोबलाइज दुनिया है यहाँ। अब हमें ग्लोबल दुनिया में रहना है या नहीं रहना है, ये हमने इसका फैसला करना है। अब ये बाकी सेशन में इंशाल्लाह होगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।